Yes, you understand that? Whether it is urban, whether it is rural, whether it is tribal, anywhere people are living. It is clear. Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality. Yes or no? Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality. आज के डेट में if I am talking about social inequality, क्या है? यदि देखा जाए तो social inequality, somebody I said that more richer, another is I said that poorer. Yes or no? Society में क्या है? Inequality है. Somebody I said that on the basis of untouchability is still facing. लेकिन वही पर्सन आज के डेट में पैसा कमा ले रहा है तो उसको सोशल इनक्वालिटी क्या हो गई? लोग अब उसके हाथ से पानी भी पी ले रहे हैं, उसके घर में चाय बैठ कर पी लेंगे. So differences means I say that if he is becoming richer, यदि if you see that green revolution in the 1967 it has been started, the green revolution. Green revolution जब इंडिया में स्टार्ट हुआ, especially I said that western UP, पंजाब, हरियाणा and then Godavari Krishna Delta. These are the reason where I said that green revolution has been started. And green revolution जब start हुआ पंजाब हरियाणा में, you know that it is for the purpose of what I said that wheat and the Godavari Krishna Delta with the help for the purpose of rice. Yes or no? इसके लिए मेजर चीज लाया गया हुआ है क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और साथ साथ में I said that हाई टेक्स लाया गया. Yes or not? Machines, chemical fertilizers and this kind of high level of और उन चीजों को क्या चाहिए था? Good amount of I said that irrigation also. Yes or no? Now tell me who can have a tractor, threshers, rich farmer or poor farmer? Rich farmer. Who can purchase I said that HYV seeds? Rich farmer or poor farmer? Who can use I said that high better chemical fertilizer? Rich farmers. इसका मतलब benefit of green revolution has gone to the what? Richer, and the richer become richer and poorer become poorer. तो क्या ये social inequality नहीं हुआ? यस है ना? तो हमने क्या बोला, यदि आज हम कुछ ऐसी चीज करें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन सभी के लिए हो, इट्स नॉट फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन. यस है ना? आज के डेट में सपोज करो यू आर ए मिल्क मैन. यस, इफ यू आर ए मिल्क मैन, यू आर प्रोड्यूसिंग मिल्क और आज आपके यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, सडनली आपके पास फोन है या आप कोई ऐसा ऐप है जो आपसे बोलता है कि यदि आपके पास एक्स्ट्रा दूध है आप तुरंत हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए. यस आना? तो एक्स्ट्रा आपने पहुँचा दिया. Therefore if you go to the I said Gujarat and any other I said that cooperative level पे क्या है? डेयरी डेवलपमेंट. तो आपने क्या किया? तुरंत ऐप में बोला आई हैव I said that left with 40 लीटर ऑफ मिल्क, आई एम कमिंग. तो 40 लीटर के लिए वो या तो खुद भेज देगा किसी को एंड देन यू कैन गो देयर. यस आना? तो आपका बर्बाद नहीं हुआ. यदि ऐसा नहीं होता आपका 40 लीटर तो आप बोलते चलो आज गांव में जश्न कर लेते हैं, लेकिन फायदा तो नहीं हुआ आपको. Getting my point? इनकम तो नहीं बढ़ी आपकी. So I said that if any innovation is there, it will improve your income, it will decrease your inequality. Getting my point? Yes or not? तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? I said that innovation in India will be inclusive as well as technologically advanced, improving the lives of all Indians. Innovation and R&D can mitigate increase in social inequality. Farmers richer हो चाहे poorer हो, poorer भी अब richer की ओर उसकी इनकम बढ़ती जा रही है. And the relieve the pressure created by rapid. इससे क्या हो जाएगा? अर्बनाइजेशन से भी क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी. कल भी एक टॉपिक ऐसा था लास्ट क्लास में. यस है ना? If I said that urbanization बढ़ेगा तो there will be high level of I said that what? People will come to the urban area, not to the rural area. Migration and all. इसका मतलब है सिंपल कि हम लोग इनोवेशन से फार्म सेक्टर्स में इनोवेशन किया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जाए. आई सेड दैट एनिमल हस्बेंड्री में किया जाए, फॉरेस्ट्री में किया जाए, पैस्चर में किया जाए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन. तो फार्मर विल रिमेन देयर इन व्हाट? रूरल एरिया एंड देयर इनकम विल इंक्रीज. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से कि फिर इक्वालिटी विल कम. क्या हमें नहीं लग रहा है कि हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं? लग रहा है. और वी आर गोइंग टू गेट इगैलिटेरियन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड ऑल. यस है ना? इसका मतलब सही न कहीं देयर फॉर में क्या छुपा हुआ दिख रहा है? इगैलिटेरियन सोसाइटी. यस है ना? इफ यू आर डूइंग एजम्पशन
तो देयरफॉर क्या छुपा हुआ है? If doing innovative, I said that innovation in India will be inclusive as well as technologically advanced, improving the lives of all Indian. Innovation and R&D can mitigate the increase in social inequality. Increase in? Yes or not? तो mitigate किसको करेगा? Mitigate increases in social inequality को mitigate कर देगा and relieve the pressure created by rapid urbanization. Urbanization से भी जो social inequality बढ़ा उसको भी क्या कर देगा? Relieved. समझ में आ रहा है? इस लाइन का मतलब आपने एज्यूम किया दिमाग में? क्या आपके अंदर लग रहा था कि लोग इक्वल हो रहे हैं? इसी को तो क्या बोलते हैं? इगैलिटेरियन सोसाइटी. इगैलिटेरियन सोसाइटी में इक्वल सोसाइटी. द ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन प्रोडक्टिविटी बिटवीन एग्रीकल्चर and knowledge intensive manufacturing and services threatens to increase income inequality. अब क्या देखा? Agriculture and I said that another in knowledge intensive manufacturing and service. आज के डेट में सर्विस और knowledge intensive manufacturing क्या कर रहा है? लोगों की इनकम बढ़ा रहा है compared to agriculture. Inequality. Yes or not? तो पहले की बात कर रहे हैं. और यदि हम इसमें by increasing India's R&D and universities to focus on the needs of the poor. लोगों के लिए R&D को लगाएं, इनोवेशन को लिए किसको लिखा है? लोगों. विच पीपल? रूरल पीपल, नीड्स ऑफ द पुअर पीपल. यस आना. तो वो इनोवेशन उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. अब चाहिए मुझे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन चाहिए. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन चाहिए तो दे विल गो विद दिस. सेल्फ हेल्प ग्रुप को गवर्नमेंट लोन देने के लिए रेडी है, लेकिन सपोज करो यू डू नॉट हैव लैंड, यू डू नॉट हैव लैंड, यू डू नॉट हैव लैंड, यू डू नॉट हैव लैंड. कैसे आपको मिलेगा? टेल मी. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इट इज इन अ ग्रुप ऑफ आई सेड दैट 15 or 20 वुमेन इन अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर एरिया बाय द शेयरिंग ऑफ सम काइंड ऑफ व्हाट? मनी. यस और नॉट? और वो आपस में माइक्रो क्रेडिटर बन जाते हैं. दे स्टार्टेड गिविंग सम, किसी को चाहिए 10,000 15,000 तो दे स्टार्टेड गिविंग. और ये ऐसा गैदर करते हैं पैसा, उन्होंने 1 साल 1.5 साल 2 साल में किया और दे बिकम व्हाट? माइक्रो फाइनेंसर एट द विलेज लेवल 15 to 20. यस और नॉट? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो लोन दिया जा सकता है, इनकी इंप्रूवमेंट की जा सकती है. जिसके पास लैंड ही नहीं है उनको कैसे गवर्नमेंट इंप्रूव करेगा? हाँ? उनको कैसे गवर्नमेंट लोन देगा? टेल मी. उनकी कोई क्रेडिट होनी चाहिए ना, तभी तो गवर्नमेंट लोन देगा. और इसी को बोलते हैं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप. व्हाट इज दैट? व्हाट इट इज नोन एज? ऐसे ग्रुप को कौन ऑथराइज करेगा? कौन उनको, उनके लिए क्या बनेगा? आई सेड दैट गारंटर. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. यस ना? और आज के डेट में नाबार्ड और एसबीआई इज गिविंग लोन टू दोज पीपल, दोज ज्वाइंट लायबिलिटी, अपने पर्पस के लिए आए पैसे, और उनको किसने सपोर्ट दिया इस टेल में? उनका गारंटर कौन बना? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इट इज क्लियर. और ये सारे किसके थ्रू किया जाएगा? यस टेल मी. इन लार्ज एरिया थ्रू द एप्स. यस ना? विद द हेल्प ऑफ एप्स. इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि इनोवेशन पुअर पीपल तक के लिए पहुंच रहा है. ऐसा ना? अब फार्मर में अच्छी सीड्स, अच्छी काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर इट इज कमिंग फॉर द पुअर पीपल. ऐसा ना? एंड आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपको पता है कि फार्मर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जा रही है. ऐसा ना? फाइनेंशियल लिटरेसी कि इनके पास यदि लैंड है और उनके पास ऐसी चीज़ें हैं तो वो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस लैंड की वजह से कितना लोन ले सकते हैं और कितना वो लोन रिटर्न कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा ऐसा भी ना लोन ले ले कि बिक जाए, खत्म हो जाए. तो वो लोन ले जिससे कोई इंप्रूव कर सके. और किस सेक्टर में पैसा लगाएं? एनिमल में, पोल्ट्री फार्मिंग में, क्या करें, फिशिंग कल्चर करें, छोटे छोटे चीज़. तो ये क्या दी जा रही है? फाइनेंशियल लिटरेसी. अभी एसबीआई और नाबार्ड ने थ्रू आउट द इंडिया इट हैज़ बीन, आई सेड दैट दिस फाइनेंशियल मेला हैज़ बीन created in